اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب، تو یہ خدمت ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے مسلمان یعنی فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے امت مسلمہ بنا، اور ہمیں دین کے طریقے سکھا اور ہمارے اوپر مغفرت فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ پہلے سے موجود خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھائیں اور آباد کریں۔ یاد رہے، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے ساتھ ہی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سفید یاقوت کا بنا ہوا گھر زمین پر اتارا تھا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ یہ گھر بیت المعمور کی شکل کا تھا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر واقع ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اسی کی سیدھ میں زمین پر مکہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے اور ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تم اس کا طواف کرو، جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز ادا کرو جیسا کہ میرے عرش کے پاس ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، بیت المعمور پہل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تھا، پھر اسے 7ویں آسمان پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ بات تاریخ ابن کثیر اور تاریخ طبری میں لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہوں جبکہ میں اس جگہ سے ناواقف ہوں؟ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ فرشتے کی معیت میں سرزمین حجاز میں پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد وہ اسی فرشتہ کی معیت میں میدان عرفات پہنچے جہاں میثاق توحید کا واقعہ پیش آیا اور اس عمل کو حج کا نام دیا گیا۔ اس بات کا بھی تھوڑا سا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ پھر وہیں پر واقع جبل رحمت پر حضرت حوا علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد وہ سرندیب یعنی ہندوستان واپس چلے گئے۔ ناظرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔
कुछ मुअर्रिखीन उलमा का कहना है कि खाना काबा सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। अलबत्ता यह हो सकता है कि इन दोनों हजरात ने बाद में किसी वक्त इसकी दोबारा तामीर की हो, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल तक थी। इतने लंबे अरसा में मुमकिन है कि जब उसकी दीवारें खस्ता हाल हो गई हों तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मिलकर उसकी तामीर की हो, लेकिन यह ख्याल खारिज आज अमकान है। मुस्तनद तवारीख में इसकी गवाही नहीं मिलती। नाज़रीन, इससे पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि जैसा कि पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 96-97 की आयत मैंने आपके और उसकी तफसील आपके सामने पेश की थी कि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले घर जो तामीर किया गया था वो वही है जो मक्का में है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल्लाह को ही सबसे पहले घर करार दिया था। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इसके बाद कौन सा घर तामीर हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैतुल मक़दिस। नीज़ ये भी इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह और बैतुल मक़दिस की तामीर में 40 साल का वक्फा है। यहाँ पर ये अशकाल पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फिर दोनों घरों की तामीर में सिर्फ 40 साल के वक्फा का क्या मतलब है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस तामीर से मुराद हज़रत इब्राहीम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली तामीर मुराद नहीं, बल्कि उन दोनों घरों की अव्वलीन तामीरात मुराद हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों इंजाम पाई। वल्लाहु आलम। मुख्तसर ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना तक बैतुल्लाह में ही इबादत होती रही। फिर तूफ़ान नूह में इस घर को आसमान पर उठा लिया गया। अलबत्ता इसके आसार बरकरार रहे। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घर की दोबारा तामीर का हुक्म मिला। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा का हुक्म मिला तो अब उन्हें ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि वो कौन सी जगह मखसूस जगह है जहां अल्लाह ताला का ये घर तामीर किया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस मखसूस जगह पर मुतले फरमा दिया। पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 26 में इरशाद बारी ताला है, व इज़ बव्वअना बिल इब्राहीम मकानल बैत, और जब हमने मुकर्रर कर दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर की तामीर करने की जगह, यानी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इन बुनियादों की निशानदही की। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक बादल का टुकड़ा भेजा जिसने उस असल जगह पर साया करके उसका तयन कर दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बैतुल्लाह का असल मुकाम यही है। चुनांचे आप अपने फर्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ तामीर काबा में मसरूफ़ हो गए। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआओं का यहाँ पे ज़िक्र है। दोनों हजरात काबा की दीवारें चुन रहे थे। बुलंद इकबाल फर्जंद पत्थर और गारा उठा उठा कर ला रहा था। एक दिलफरेब मंजर था। नसीम रहमत के झोंकों से दिलों के गुंचे शगुफ्ता हो रहे थे। उस वक्त अल्लाह ताला के ये दोनों मकबूल बंदे अपने रब करीम से मांग रहे थे और वो दिए जा रहा था। व इज़ यरफ़अ इब्राहीम अलक़वाइद मिनल बैति व इस्माईल और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादें और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, तो वो दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे रब हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। कबूलियत के बगैर हर अमल बेकार महज है।
इसी लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा दुआ करते थे कि हमारा अमल मकबूल हो जाए। हर मोमिन की भी तमन्ना होती है कि इसकी नेकी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूल हो जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी 2 रकत कबूल हो गई है तो मैं इसके बदले में दुनिया माफ़िहा की हर चीज़ ठुकरा दूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कबूलियत का जो मायार मुकर्रर फरमाया है वो बहुत बुलंद है। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों के आमाल ही कबूल फरमाता है। नेकी उसी की कबूल होती है जिसका दिल तकवा से मामूर हो। अगर दिल तकवा से खाली है तो उसमें कुफ्र, शिर्क, नफाक और रियाकारी भरी हुई होगी। ऐसे में कोई अमल मकबूल नहीं होगा। चुनांचे कबूलियत के मायार सिर्फ खुलूस और तकवा है। नादरीन, दामने तलब फैला हुआ था और दस्ते करम मसरूफ़ जूदो अता था। अपने और अपनी औलाद के लिए इतना ही मांगा कि लज्जत न्याज बढ़ी, लुत्फ़ इबादत में और अजाफा हुआ। वो मज़ीद दुआ गो हुए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, हमें अपने लिए मुसलमान यानी फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद को भी अपने लिए उम्मत मुसलमान बना और हमें दीन के तरीके बता और हमारे ऊपर मग़फ़िरत फरमा। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये दुआ करके गोया उन्होंने अल्लाह ताला से सब कुछ ही मांग लिया। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी और फिर अपनी औलाद के लिए उम्मत मुसलमान होने की दुआ मांगी, उस वक्त हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही मौजूद थे। लिहाजा उम्मत मुसलमान की दुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के हक़ में तसव्वुर की जाती है, क्योंकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तो उस वक्त तक पैदा ही नहीं हुए थे। इसी मुकाम पर यहूद और नसारा धोखा खाते हैं और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। उनका दावा यह है कि ये दुआ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में है और उम्मत मुस्लिमा भी उन्हीं की कौम है। हालांकि तारीख़ी शवाहद से वाज़ेह होता है कि उम्मत मुसलमा का ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से है, जो उस वक्त मौजूद थे और दुआ में शामिल थे। चुनांचे ये कबूलियत दुआ का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से मबूस फरमाया। नाज़रीन, दुआ के दूसरे हिस्से में बाप बेटे ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, वारिना मनासिकना, ए परवरदिगार हमें हमारे मनासिक हज भी बता दे। मनासिक मनसक की जमा है जिसका लफ्ज़ी मानी धोना है, इसीलिए अहले अरब कपड़ा धोने को नसक सौब कहते हैं। नसक कुर्बानी को भी कहते हैं। इसी मुनासबत से इबादत और रियाजत का नसक कहते हैं और आबिद को नासिक और इबादत गाह और कुर्बानी की जगह को मनसक कहते हैं। गोया मानी यही निकलता है कि जिस तरह धोने से कपड़ा मैल कुचैल से साफ हो जाता है, इसी तरह कुर्बानी और इबादत से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। नादरीन, जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान हज का हुक्म सादर फरमाया। पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 27 में इरशाद है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, और ऐलान आम कर दो लोगों में हज का, वो आएंगे आप अलैहिस्सलाम के पास पाप्यादा और हर दुबली ऊँटनी पर सवार जो आती हैं हर दूर दराज रास्ता से। अर्ज़ की, इलाही मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? फरमाया, वअज़्ज़िन व अलैयल बलाग,
तुम ऐलान करो, उस आवाज को पहुंचाना हमारा काम है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जबले अबी कबीस पर तशरीफ ले गए और हज का ऐलान फरमा दिया। जो लोग अभी पैदा नहीं हुए थे उन्होंने भी यह ऐलान सुना और पुकार उठे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिसने दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर लब्बैक कहा उसे ही हज की सआदत नसीब होगी, और जितनी बार जिसने लब्बैक कहा वो उतनी बार हज करेगा। दोनों बाप बेटे ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अरकान हज सिखा दे ताकि जो लोग इस इरादे से आए वो तेरे अहकाम के मुताबिक इस फरीज़ा को अदा कर सकें। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में ऊंट की सवारी पर खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ लोगों मुझसे अहकाम हज अच्छी तरह सीख लो। लअल्ली ला अराकुम बाद आमी हाजा, शायद इस साल के बाद तुम्हारे साथ मुलाकात ना हो सके। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज के बाद दोबारा मक्का मुकर्रमा न आ सके और 3 माह बाद खालिक हकीकी से जा मिले। गर्ज मनासिक के से हज का तरीका और उसके अहकाम मुराद हैं जिनके मुताबिक क़यामत तक आने वाले लोग हज करते रहेंगे। अरेना रुयतुन से है, इसका मसदर रायुन भी आता है। अगर रुयतुन मसदर लिया जाए तो इसका मानी आंख से देखना होगा, यानी ए अल्लाह हमें मनासिक हज दिखा दे। और रायुन मसदर हो तो इसका मतलब होगा कि हमें मनासिक हज का इल्म अता फरमा। वतुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।